Good morning, my dear students. Class 8, yesterday we were doing lesson number 3. Today we are here to discuss about the lesson number 4. In our syllabus, this lesson is also very important. And the name of the lesson is More About Tribals. More About Tribals. In this chapter, हम इसमें देखेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में, स्पेशली जो हमारा नदर्न ईस्टर्न बेल्ट इंडिया का है, यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी और ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई यहाँ पे इंडिया में, उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटी के साथ इसका किस तरह से इंटरेक्शन हुआ, बाद में रिबेलियन पैदा हुए। कल हम लोग बात कर रहे थे ब्लू रिबेलियन की, इंडिगो के बारे में। उसी से ये काफ़ी कनेक्टेड हमारा लेसन है कि ट्राइबल कम्युनिटी भी एंग्री थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेस्ट पॉलिसी को लेकर के, या एग्रीकल्चरल पॉलिसी, या बहुत सारे टैक्सेस, रेवेन्यूज। हम लोग 9th में पढ़ेंगे कि किस तरह से फॉरेस्ट को डैमेज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी इससे काफ़ी इफेक्टेड हुई और लॉ बनाया फॉरेस्ट पर, फॉरेस्ट को बांट डाला और रिजर्व फॉरेस्ट और अनरिजर्व फॉरेस्ट और स्पेशल फॉरेस्ट करके इन लोगों ने परेशान किया पूरी ट्राइबल कम्युनिटी को। तो बहुत इंटरेस्टिंग हमारा हिस्ट्री में ही है वो लेसन। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते थे पहले। अब ट्राइबल ग्रुप्स बहुत सारे नाम हैं, गुज्जर बकरवाल, गोंडास, गोंड, मुंडा, ये सारे ट्राइबल कम्युनिटी हैं। तो हम यहाँ पे बिहार और झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटी को देखेंगे कि हाउ एट दैट टाइम ड्यूरिंग दोज पीरियड्स how did tribal groups live and what was the condition of the tribal groups or the tribal people during the colonial rule. colonial rule कहते हैं जब हमारे यहाँ जब ब्रिटिश आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और मैंने बताया था कल भी कि they came here for the first time as traders but after some times they became ruler. तो रूलर जब बन गए तो कॉलोनियल उनका स्टार्ट हो गया। और उसके बाद फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, फॉरेस्ट लॉ बनाया। फॉरेस्ट, अभी कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर वाज ए सोर्स टू क्रिएट रेवेन्यू, तो ये एग्रीकल्चर पर कई तरह से इम्प्रूव के नाम पर, इम्प्रूवमेंट के नाम पर एग्रीकल्चर में इन लोगों ने तब्दीली लाई। और वहाँ से माहलबाड़ी टैक्स और मोनरो टैक्स और फिर वो रैयतदारी टैक्स, इस तरह के टैक्स लगाए, और बाद में जिसमें किसान काफ़ी ये हुए और उन्होंने रिबेलियन का अपनाया रास्ता, और यहाँ पर रिवोल्ट भी हुआ बिहार में और फिर झारखंड में, ये भी देखा। इस लेसन में हम पढ़ेंगे द प्रॉब्लम विथ ट्रेड एंड द सर्च फॉर वर्क बाय ट्राइबल्स बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में हम शॉर्ट में बताते हुए चलें अभी कि बिरसा मुंडा was a tribal leader of Jharkhand and he was very famous among the tribal community, and also Birsa Munda led so many revolts against the British government in Jharkhand. So just we want to here discuss first of all how the tribal groups or the tribal communities or the tribal people live during those periods during the colonial rules. They were living in the groups. They were based on the forest. Tribals were based on the forest only, and according to their leader, the forest was their birthright, and there was no question to compromise with the forest. So tribal people actually they were dependent on the forest and agriculture also. So when the British came here, they tried to capture the forest because it was the forest where the revenue, where a lot of the medicines were there,
a lot of the space, precious teak, sal, and the trees are there. So they started to capture the forest, and so the forest tribal people, they became angry. Tribal people were involved in various kinds of activities for their livelihood. They used to go to the forest, and they used to go to sell the medicines, herbal medicines from the forest. They used to go forest for the firewoods. They sell into the market and the other areas, and they and for that they earn some money for their livelihood. So after this, they became the tribal people became the jhum cultivators. Jhum cultivators. Jhum actually practice jhum, that is the shifting cultivation, means the 5 years or 10 years at a place they work for agriculture for to produce something. But after 5 years or 10 years, they just shift that agriculture into the other land. So it was the jhum agriculture and jhum farming also it is called. And so it was the the practice and for the tribal people. They cleared a small patches of the forest land and burned the vegetation, which yielded potash, a fertilizer for the soil. The seeds were scattered. No plowing was done. After the harvest, they moved to another patch, and the earlier patch was left follow for the same year. So it was the practice of the jhum cultivation. Means it is also called the shifting cultivation. It is also called in class 9 we will study shifting cultivation, jhum cultivation, both are the same thing. So it was practiced by the tribal people during the colonial rule. So they were leading their life with the forest also, with the jhum cultivation also. And they were, basically they were, we know from class 7 or class 6 that the tribal people were also the hunters and gatherers. Hunters and gatherers. They were used to hunt the animals during the Stone Age or pre-Stone Age, and after the very, very ancient periods, stories these are, the tribal people were based on, dependent on the hunters. They were the hunters and the gatherers, food gatherers, because there was no food, and they used to get from the people. And so hunters and the gatherers. Hunting and gathering of the food produce was another occupation. It was an occupation actually. And the people, the tribal people, were dependent on they used to gather the foods also from this area to that area, because there was it was the very, very old system. So some were animal herders. After that, some people, tribal people, they became animal herders. The cow, the dog, and other animals, they started to domesticate the animals, and they became the animal herders. After that, cultivation, they started cultivation, this tribal people, and settled cultivation, because at that time, up to that time, they knew that there is cultivation, so they started. And they also started to settle near the river or near the water, and the settled cultivation they started. And Mundas, Gonds, and Santhal led a more settled life. These are the names of the tribal communities in Bihar, Jharkhand area also, and in some other areas also, different names, but these all are the tribal people. Some tribal groups like Mundas, Gonds, and Santhal led a more settled life. They cultivated their fields in the same location every year. They started using the plough and gradually established their right on the land. Every member had a right to the land among the Mundas. The land belonged to so actually they were the landlords, and they started to create some farming. They started to create some the agriculture on their lands. So
The British saw the settled tribes as more civilized than the hunter-gatherers and the tribe. So British decided to capture the lands of these tribal people. So colonial rule or the colonial rulers or the British rulers, they decided to capture the land of the tribal people, and so they made a lot of laws to capture. First, they started to increase they started the high revenue, but after some times they started to capture with the making of these some laws, they started to capture the land of the tribal people. Shifting cultivation. What happened with the shifting cultivation? The British rulers or the British authorities or the British officers or the colonial rulers, all are the same meaning, all have the same meaning. So they used to say that shifting cultivation is not a just a good thing, positive for the cultivators, for the tribal people. Actually, the fact was that from the shifting cultivation, it was not possible for the British people or the Englishmen or the colonial rulers to take the revenue or to collect the revenue. But after some times, they started to say that these are the lands which should be used properly. So they were quite against with the shifting cultivation or the jhum cultivation. So they were in the opinion that jhum cultivation or the shifting cultivation must be stopped by the tribal people so that they may get some revenue, they may get some taxes, and to meet their expenses for the development or in the name of the development. So this effort was not very successful. Poor soil quality did not support settled and the sustained agriculture. In addition, water scarcity was a problem. Jhum cultivators reverted to their old systems, and when the British, जब देखा ब्रिटिश हुक्मरानों ने, रूलर्स ने, कि झूम कल्टीवेशन और उनके लिए ये जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनके लिए फायदेमंद नहीं है, उसके बाद इन्होंने कहना शुरू किया कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक बेकार सा है और इसके बदले में जो है बाज़ाब्ते तौर पे उस तरह से जो ट्रेडिशनल जो होता है खेती वो की जाए ताकि उन्हें रेवेन्यू मिल सके, टैक्स मिल सके, वो टैक्स उसको नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए अब इन्होंने लॉ बनाना शुरू किया, कानून बनाना शुरू किया और ज़मीनों से कि मज़ीद इनको ज़रूरत से ज़्यादा इनको टैक्स मिले और इस तरह से दे स्टार्टेड टू मेक द फॉरेस्ट लॉ और उसका इम्पैक्ट बड़ा ख़राब हुआ। अब फॉरेस्ट लॉ बनाना इन्होंने शुरू किया और फॉरेस्ट लॉ में इन्होंने ये बनाया कि आप जो जो पहले तो फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में बांट दिया, है ना, अलग अलग कर दिया कि उनके लिए अलग फॉरेस्ट है, जो कि कीमती लकड़ियाँ जहाँ जहाँ थीं उनको रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया और उसके बाद जहाँ पर थे वो उसको वो क्या कहते हैं उसको पेस्चर्स लैंड यानी चारा के लिए, जानवरों के खाने के लिए एक हिस्सा वो कर दिया और एक हिस्सा ऐसा कर दिया कि जहाँ पर कि परमिशन देने के बाद, यहाँ पे कुछ पैसे देने के बाद ही ट्राइबल कम्युनिटी को अपने जानवरों को लेकर के जाना होता था। तो ये सब और हर जगह ये अपना उससे टैक्स वसूलते थे। तो इस तरह से लॉ बनाया इन्होंने, फॉरेस्ट लॉ, बट इसका इम्पैक्ट बड़ा खराब हुआ। इसका इम्पैक्ट इतना खराब हुआ, द लाइफ्स ऑफ द ट्राइबल्स वेयर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट। द ब्रिटिश नीडेड टू कंट्रोल द राइट्स ओवर द फॉरेस्ट फॉर द टिम्बर। They declared that all forests were state property and banned झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को तो बंद कर ही लिया कि क्योंकि वो एक हिस्से को जलाते थे और फिर उसके बाद उसको छोड़ देते थे और दूसरी खेती फिर कुछ दिनों के बाद उसमें खेती होती थी, तो ये अल्टरनेट करते रहते थे, तो उसको तो बंद ही कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश हुक्मरानों ने, ब्रिटिश रूलर्स ने क्या किया कि ट्राइबल जो कम्युनिटी थी इससे कहा कि जंगल जो है ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, आपका लेना देना नहीं है
और आप इसे खाली करने, इसमें न रहें और इसमें जाना भी मना है। ये इस तरह से देखिए, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्टेप ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द कॉलोनियल गवर्नमेंट, और यहाँ से वो स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर they declared that all forests were state property and banned झूम cultivation. This resulted in most areas in search of livelihood. अब क्या हुआ कि जब फॉरेस्ट में वो लोग जाते थे बाज़ाब्ता तौर पे बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, और वहाँ पर जाना उनका बंद कर दिया गया और फॉरेस्ट को एक तकसीम कर दिया गया, अलग ढंग से डिवाइड कर दिया गया, तो वो पाबंदी लग गई और नाउ दे वेयर नॉट at the liberty to go or to enter into the forest areas. न अपने जानवरों को ले जा सकते थे, न अपने खुद भी जा सकते थे। नतीजा क्या हुआ कि they became anger. झूम cultivation with small patches of land in the forest of cultivation. In return, the forest village would have to provide labor to the forest department, and इस तरह से काफी परेशान हुए। इम्पैक्ट इसका बड़ा बुरा असर पड़ा इस पर, इनके लाइफ पर, और वो इधर उधर काम करने के लिए घूमने लगे, क्योंकि जो मेन इनका जो फॉरेस्ट था, जहाँ से लकड़ियाँ लाते थे, दवाइयाँ लाते थे, लकड़ियाँ जलावन की भी लाते थे, महंगी लकड़ियों को काट के बेचते थे, वहाँ जाना इनको बंद कर दिया गया। तो डेफिनेटली दे हैड टू ए वेरी हार्श लाइफ, दे हैड टू लिव वेरी हार्श लाइफ, उनको करना पड़ा। अब ट्रेड, व्यापार, जाहिर सी बात है कि जब इनकम रुक जाती है और तो फिर व्यापार पे, ये तो व्यापार करने आए ही थे यहाँ से, अंग्रेज, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार ही करने के लिए यहाँ पे आए। बाद में इन्होंने यहाँ पर कैप्चर किया एंड दे बिकेम रूलर। तो यहाँ पर इन द 19th century traders, middlemen and the money lenders exploited tribals at every opportunity. हर पॉइंट पर इन्होंने इसे एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट कहते हैं शोषण करना, यानी ट्राइबल कम्युनिटी का शोषण किया। जंगलों में कानून बना करके वहाँ का शोषण किया, ट्रेड में कानून बना करके किया, टैक्स लगा करके इनका शोषण किया गया। इस तरह से काफ़ी इनके शोषण की शुरुआत हुई। They bought forest produce at low rates, made the tribals work for low wages and lent money at high rates. इसमें से कुछ मनी लेंडर्स बन गए जो उनको उधार देने लगे पैसे कि आप काम करो, कारोबार करो। उनका जो इंटरेस्ट का रेट होता था बड़ा हाई होता था। उनके जो प्रोडक्ट्स होते थे जो खेतों में पैदा करते थे, वो लोग ट्राइबल कम्युनिटी उनको बिल्कुल कम रेट पे खरीदते थे, और फिर इस तरह से उनकी मजदूरी जो होती थी, वो काम जो करते थे, हमारे पास में ये 25 पेज नंबर में कुछ फिगर्स भी दिया हुआ है, जिसमें वी कैन सी दैट द ट्राइबल पीपल आर वर्किंग इन द कोल फील्ड्स, the daily wages, on the basis of the daily wages, and they were getting very low wages. बहुत थोड़ी मजदूरी उनको मिलती थी। इस तरह से इनका शोषण किया जाने लगा, और फिर धीरे धीरे the tribals looked upon traders as their exploiters. अब उन्होंने देखा कि अब हमारा जो है ये एक्सप्लॉइट हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, और अब हम लगता है कि कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ से रिबेलियन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ट्राइबल कम्युनिटी की रिबेलियन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, और यहाँ से वो लोग अपना इनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ। Tribals who were displaced from their traditional sources of livelihood began to looking for other kinds of work. तो अब इधर उधर जाहिर सी बात है, जब काम नहीं मिलेगा तो इधर उधर घूमने लगे। बाय द एंड ऑफ द 19th century उसके बाद में कुछ लोगों को काम मिला, प्लांटेशन में मिला, आसाम में मिला, कुछ लोगों को बिहार में भी काम मिला, झारखंड में मिला काम, और इन लोगों को लेकिन बाउंडेड लेबर की हैसियत से काम मिला। आप मेरे पास काम करोगे तो आपको इतनी मजदूरी मिलेगी और आपको यहीं काम करना है, कहीं जाना नहीं यहाँ से। इस तरह से एग्रीमेंट करके काम मिल रहा था। लेकिन इसी बीच में एक ट्राइबल का लीडर आता है, उसका नाम है बिरसा मुंडा, है ना। एक बिरसा मुंडा नाम का एक ट्राइबल का लीडर आता है, जो कि ये सारे जुल्म सितम इनके ट्राइबल कम्युनिटी के पर जो हो रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिया उनको देखता है काफ़ी बारीकी से। और बिरसा मुंडा नाम का एक जो है वो 1800
कि 17 में ये पैदा हुआ, और वो ही वाज एक गरीब ट्राइबल, एक गरीब आदिवासी जिसे कहते हैं ट्राइबल को, उसका बेटा था वो. हिज फादर मूव्ड अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस looking for work. Birsa grew up around the forest of Bohonda like other children of his age. He grazed sheep. ये भी भेड़ बकरी चराता था और ये भी गरीब परिवार का था. लेकिन ये जब जुल्म सितम देखा कि कॉलोनियल रूलर्स जो है काफ़ी जुल्म कर रहे हैं, तो उसने क्या किया कि बिरसा वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेल्स ऑफ पास्ट मुंडा uprising. He also saw the leaders, Sardar, urging the tribals to revolt and bring back the golden age of Mundas when they were free Diku operated. एक डिकू कहते हैं फॉरेनर को, बाहर के रहने वाले को डिकू बोलते हैं. एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट भी है डिकू के बारे में, हम बताएंगे, और क्वेश्चन का जब आपको लिस्ट मिलेगी आंसर्स की यूट्यूब के जरिए, तो वहाँ देखना है. तो डिको कहते हैं आउटसाइडर्स को, और ये ट्राइबल कम्युनिटी जो है इनको जो है डिको ही कहती थी, यानी जो अंग्रेज थी इनको डिको के नाम से उनको जाना जाता था, कहा जाता था. तो ये अपने से बड़ों के जरिया, फोर फादर्स के जरिया इन लोगों ने सुन रखा था बिरसा मुंडा ने कि इस तरह से ये अंग्रेज लोग जुल्म करते हैं, करते चले आ रहे हैं. इसलिए इसके दिमाग में ये बात इनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ था. द मुंडा लीडर्स थॉट ऑफ देमसेल्फ एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स एंड, और ये अपने को कहते थे ये लोग जो आए दे आर आउटसाइडर, से तो बाहर से आए, विदेशी हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी हैं ये जमाने से रह रहे हैं. वी आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, ये हमारी धरती है, पहाड़ हमारे हैं, ये नदियाँ हमारी हैं, ये सब कुछ हमारा है और ये हमें बेदखल नहीं कर सकते. इस बात का इनके ये टेल्स कहानी के जरिए ये लोग सुने भी हुए थे बचपन से, तो ये दिमाग में इनके बात होती थी, इनके खिलाफ माहौल बन रहा था. तो बिरसा मुंडा एक्चुअली वो 1870 में जो पैदा हुआ. बिरसा's long estate Chaibasa from 86 to 90 constituted a formative period of his life, and the influence of Christianity shaped his own religion. This period was marked by the German and Roman Catholic Christian agitation. Chaibasa was not far from the center of the Sardar. तो इस तरह से उस जमाने में there was a time for the development of the Christianity, और इसमें दो होते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक होते हैं. तो इस जमाने में काफी लोग, उस वक्त में ब्रिटिश ने एक काम किया था, इसको भी गौर से समझते चलो, कि मिशनरी स्कूल खोले गए थे, क्योंकि इंडियंस के बारे में उनके ख्याल थे ब्रिटिश के और कॉलोनियल रूलर्स के कि दे आर अनसिविलाइज्ड पीपल, दे आर अनकल्चर्ड, दे आर अनएजुकेटेड. सो उनको ज़रूरत है तालीम देने की, और इसलिए उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी स्कूल खोला था, मिशनरी स्कूल जिसको कहते हैं, और जिसके ज़रिए धर्म की भी वो शिक्षा दी जा रही थी और धर्म का प्रचार किया जा रहा था. यानी जिसे हम कहते हैं कैथोलिक और रोमन धर्म का प्रचार किया जा रहा था, और उससे भी ये लोग करीब गए. और फिर इस तरह से बिरसा मुंडा ने गवर्नमेंट कैरेक्टर ऑन हिज माइंड. Soon after leaving Chaibasa in 1890, Birsa and his family gave up their membership of the German mission in line. उन्होंने छोड़ दिया और उनके सरदार लोगों के साथ ये रह रहे थे, और सबके साथ वहाँ से चाईबासा से माइग्रेट करके अपने होमलैंड में ये लोग चले आए. तो यहाँ से बिरसा मुंडा काफ़ी रिबेल बने. और बिरसा वाज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ए विष्णव प्रीचर. एक बहुत बड़े एक प्रीचर थे जिनसे ये इफेक्ट काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए. He started wearing the sacred thread and understood the value of the leading a pure and pious life. और अपने एक बड़ी ही धार्मिक जीवन को वहाँ से गुजारना शुरू किया. और pious life, pious कहते हैं धार्मिक को. These early influences shaped his
थाउट्स एंड गाइडेड द फ्यूचर। आगे का जो उनको काम करना था ब्रिटिश के खिलाफ एक माहौल, तो उसका एक दिमाग बना, एक प्रोग्राम बनाया, कार्यक्रम बनाया इन्होंने। और ये इनके भी गुरु थे एक दो, उनके साथ काफ़ी ये इन उससे उसके संपर्क में आने से ये काफ़ी बने और लोग इनको एक लीडर मानने लगे, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल लाइफ लीड कर रहे थे बिरसा मुंडा। आज भी बिरसा मुंडा को काफ़ी इज्जत मिली हुई है और रांची में उनका मुंडा चौक है, बिरसा चौक, वहाँ पे तो ये ब्रिटिश के खिलाफ एक माहौल इनको बनता रहा, दिमाग में बातें आती रही कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए मिशनरी स्कूल इन लोगों ने खोला है। और इस तरह से बिरसा मुंडा और दूसरे सरदारों के साथ, और सरदार लोग भी, दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी भी बिरसा को एक अपना हीरो समझने लगे और कहा कि भगवान के अवतार हैं, है ना, भगवान के अवतार हैं। और ये इनकी बातों पर लोग काफ़ी जो है वो एग्री करने लगे और इनकी बातों पर लोग इकट्ठा होने लगे। इस तरह से बिरसा मुंडा का कैरियर यहाँ पे शुरू हुआ। उसके बाद फिर ही अर्ज मुंडा, तो अब इन्होंने ये किया, संबोधित किया और लोगों से कहा, मुंडा कम्युनिटीज वालों से कहा कि देयर गोल्डन एज, तुम्हारा जो माजी है, पास्ट तुम्हारा बड़ा ही गोल्डन है, और अब इस एज को लाओ। ये जो तुम्हारा पास्ट जो है बड़ा ही धूमिल हो गया है ना, उस पास्ट को दोबारा लाओ, इस ग्लोरी को दोबारा लाओ। तो ये बात कहा करते थे कि और बाय 1895 द मूवमेंट स्प्रेड एंड द ब्रिटिश डिसाइडेड टू एक्ट। धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग विद्रोह करने लगे इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। दे स्टार्टेड टू begin the movements against the laws made by the British government or also against their acts। उनके कानून के खिलाफ एक माहौल बनने लगा और एंड बिरसाबाद, फिर उसके बाद इन्होंने जब आवाज़ उठाई तो इनको अरेस्ट कर लिया गया 1895 में, चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड jailed for 2 years. After he was released in 1897, Birsa mobilized his people into going from village to village। अब जब इनको 2 साल के लिए अरेस्ट कर लिया गया, when he was released in the year 1897, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहाँ से डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया हुकूमत के खिलाफ, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इन्होंने माहौल बनाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया गया कि किस तरह से तुम लोगों पर जुल्म और ज्यादती की गई है। एट्रोसिटीज वाज एट इट्स पीक, सो यू हैव टू रिकॉल योर पास्ट। ये जो तुम्हारी ग्लोरी है, तुम्हारी जो माजी है, तुम्हारा जो फ्यूचर पास्ट है, इट वाज जस्ट गोल्डन पास्ट। सो इसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा एंड यू हैव टू रीबेल, यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट for your glory to regain your past। And therefore he has started to campaign door to door and organize the tribal community, Gonds, Gondas, Santals, Mundas। These were the community of Santhal Pargana area or the Jharkhand area। So they started to organize all these, convince भी किया, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन किया और इनको तब लोग भगवान समझने लगे कि ये जो है ट्राइबल कम्युनिटी के मसीहा हैं, भगवान का दर्जा मिल गया। और ऐसे भी ही वाज वेरी पायस, पायस कहते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को, और पायस थे, काफ़ी मजहबी भी थे, और इस तरह से सादगी भी थी उनके अंदर में, बिरसा मुंडा में। तो ही बिकेम ए हीरो फॉर द ट्राइबल, होल ट्राइबल कम्युनिटी, वो हीरो हो गए। और इस तरह से बिरसा मुंडा को 1897 में, 2 साल के बाद, 95 में इनको अरेस्ट किया गया, 97 में he was released from the jail, and after that he has started to campaign door to door and to organize the tribal community also against the British government। और यहाँ से एक माहौल बना रिबेलियन का और एक रिवॉल्ट का, रेवोल्यूशन का, और चैलेंज किया इन लोगों ने, खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमारे इस पर फॉरेस्ट से हट जाओ, ये हमारा जो है वो बर्थ राइट है, और हम जो ट्राइबल कम्युनिटी वी आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, और ये तुम्हारी स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है। और यही वजह थी, और नतीजा ये हुआ कि कन्फ्रंटेशन हुआ और वो लोग जो है ब्रिटिश कम्युनिटी और ब्रिटिश
एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी और कॉलोनियल रूलर्स, ये जितने थे इन पर जुल्म सितम इन पर शुरू कर दिया. एट्रोसिटीज स्टार्टेड ऑन द ट्राइबल कम्युनिटी. दिस मूवमेंट पेटर्ड आउट विद द डेथ ऑफ बिरसा इन 1900, यानी जस्ट 20वीं शताब्दी के एंड में उनका डेथ होता है. इनको अरेस्ट किया गया, इनको रिवॉल्यूशन के दौरान जो रिवॉल्ट ये कर रहे थे, और उसके बाद the movement brought about two significant changes. Firstly, because the movement, the colonial government introduced laws to prevent decay owing tribal lands. Secondly, it brought the tribal people together. ये इनके मरने के बाद एक ट्राइबल पीपल ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्गेनाइज्ड होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ माहौल बनाया. और एक डीकू जिसको आउटसाइडर को हम कहते हैं, डीकू ये भाषा है, ये लैंग्वेज है ट्राइबल कम्युनिटी की, जो कि इन लोगों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उनके ऑफिसर्स को ये लोग डीकू कहा करते थे, बिकॉज दे वेर आउटसाइडर्स. तो ये डीकू के खिलाफ माहौल बना, और ऐसा माहौल बना कि यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई के लिए इनको भगाना है अंग्रेज़ों को, और हमें यूनाइट रहना है. तो यूनिटी का एक लेसन गया इनके मौत के बाद, यानी बिरसा मुंडा की मौत के बाद. और उसके बाद forced its colonial government to introduce laws so that land of the tribals could not be easily taken away by them. जिस तरह से हम लोगों ने देखा, कल भी देखा था कि ब्लू रिबेलियन पैदा हुए, और फिर वहाँ से बंगाल, जहाँ से 95% ये इंडिगो यूरोप में जा रहा था, और वहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया गया बिहार में, और ये 5% पे हो गया. उसी तरह से यहाँ भी जो भी थे इनकी एक्टिविटीज़ थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स की, तो इन पर भी असर पड़ा काफ़ी, और इन्हें भी अब आसानी से ट्राइबल कम्युनिटी की ज़मीनों को ये जब्त नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दे वेर यूनाइटेड, दे बिकेम यूनाइटेड. और इस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी का आगे का सिलसिला चला, और फिर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन लोगों ने माहौल बनाया. और जो हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी उसके बाद एंड होने के बाद 1920, 1930, 1942 इन सब में इन लोगों ने माहौल बनाया और गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि दे हैड टू गो फ्रॉम इंडिया, और यहाँ से उन्हें जाना पड़ा. दे हैड टू लीव इंडिया. और इस तरह से तो ये एक सिंबल और एक स्ट्रगल बना. ये ट्राइबल कम्युनिटी का जो एक रिबेलियन हुआ, एक रिबेल बने ये लोग, और रिवॉल्ट चलाया अगेंस्ट द कॉलोनियल रूलर्स. तो एक बहुत बड़ा एजिटेशन था, एक शुरुआत थी भारत को आज़ादी दिलाने की, एक बहुत बड़ी शुरुआत थी. और इस तरह से इन लोगों ने किया. ट्राइबल्स फॉर्म द बिरसा मुंडा जी. तो यहाँ पर हम इतना ही बात देखते हैं. यहाँ पर अभी ये हमारे पास लेसन में इसमें ख़ास बातें हम लोगों ने पढ़ी सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, कि ट्राइबल कम्युनिटी से हम क्या समझते हैं. नोमैड्स, दे वेर एक्चुअली नोमैड्स एट द फर्स्ट स्टेज. और उसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी के सिलसिले से ज़मीनों को किस तरह से कैप्चर किया गया, उनके फॉरेस्ट को कैसे कैप्चर किया गया, और फिर फॉरेस्ट के बाद ट्राइबल कम्युनिटी को किस तरह से कंपेल किया गया, मजबूर किया गया खेती करने पर, उनके मतलब की चीज़ों को, और उन्हें कम मजदूरी देकर के रखा गया काम पे. और ट्राइबल कम्युनिटी को कि जो उपज होती थी, जो उन्होंने अपने अपने खेतों में, उनको लो प्राइस पे उनसे परचेजिंग हो रही थी कॉलोनियल रूलर्स के जरिया. तो ये सारा एट्रोसिटीज, ये सारा ट्राइबल कम्युनिटी पे किया गया. फिर हम देखते हैं इसी बीच में जब माहौल बदलने लगा तो बिरसा मुंडा चले आए. और बिरसा मुंडा आए तो बिरसा मुंडा के आने के बाद ट्राइबल कम्युनिटी इकट्ठी हुई, और ट्राइबल कम्युनिटी के इकट्ठे होने के बाद में इन लोगों के खिलाफ एक माहौल बना, क्योंकि हम फॉरेस्ट को बांट दिया गया था, और मुंडा कम्युनिटी या और भी ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ नहीं जा सकती थी. तो ये सारे का सारा माहौल चेंज हुआ. बाद में उनको अरेस्ट किया जाता है, बिरसा मुंडा अरेस्ट होते हैं. अरेस्ट होने के बाद जब उनको रिलीज किया जाता है तो 2 साल तक उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को कन्विंस किया, और कन्विंस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट है,
ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हमारा माजी है, पास्ट, उसको हम याद रखें। हमारा ग्लोरी से भरा हुआ ये माजी रहा है, इसलिए हम यूनाइट हो जाएं। डोर टू डोर कैंपेन किया और यूनाइट हुए ये लोग। उसके बाद इन्होंने फिर ट्राइबल इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को एक चैलेंज किया, और चैलेंज करने के बाद तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सोचने पर वो मजबूर हो गई कि इनकी ज़मीनों को हथियाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसी बीच में उनका डेथ हो जाता है बिरसा मुंडा का। लेकिन वो एक मैसेज छोड़ के गए कि ट्राइबल कम्युनिटी यूनाइट रहो, तभी तुम इनके जुल्म सितम का मुकाबला कर पाओगे। नतीजा ये हुआ कि दे बिकेम यूनाइटेड एंड दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूनाइटेडली। साथ साथ ये कर रहे थे, और करते करते इनका बिरसा मुंडा का अंत हुआ, और ट्राइबल कम्युनिटी बिकेम ए पावरफुल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, एंड इट ऑल्सो played an important role in the freedom struggle of India. एंड उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा इसमें सिर्फ छोटा सा लेसन है। मेन हमारे इस पूरे लेसन में बिरसा मुंडा हैं छाए हुए। उससे पहले जो लॉ बनाए थे इन लोगों ने, जो कानून फॉरेस्ट को अलग अलग किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया, ओनली टू इंक्रीज द रेवेन्यू, ओनली टू कलेक्ट द रेवेन्यू, सिर्फ टैक्स और रेवेन्यू और पैसे के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सब किया था। तो ये सारा, उसके बाद बिरसा मुंडा का आता है, यही हमारा है तो लेसन। और इसके बाद हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो इसको नोट्स को, उसमें बिरसा मुंडा का है। और ये डीक्यू, तो वो भी एक वर्ड है जो मैंने बताया आउटसाइडर्स के लिए इस्तेमाल हुआ था। यहाँ के बाद हमारा फिर आगे 5वां लेसन में आता है इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी तरह से माहौल बना, और पहला वार जिसको हम 1857 का नाम देते हैं, वहाँ से चलता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू सो मच।